Hello students, in the previous chapter we have done all the forces and balanced force, unbalanced force, contact force and non-contact force. Today we are going to learn about the what is the meaning of inertia. What is the actual meaning of inertia. I think I was also taught this, what is the meaning of inertia, but for revisions we will do again. We have seen that an object change its state of motion due to force. The object which is present over, it changes its directions, which changes its direction, state of motion. अपना मोशन को क्या करेगी, चेंज कर लेगी जब इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, फोर्स. इज नथिंग बट इनर्शिया, is nothing but inertia. When the object is change its force, change its motions, when the object is change its motions due to force is nothing but your inertia, is nothing but your inertia. Next, in the absence of force, object exhibited tendency to remain the exhibiting state of motion. If there is no force will apply over here, it have the tendency to remain still or remains the motion due to force. Then the coin straight away falls in the. Let us see the following example. Just like for example of inertia, we can take the lots of example. Just like first one, take a postcards and keep it on a glass. Keep a 5 rupees coin on it. Now actually push the cards. The coin straight away fall in the glass. Have you seen done this? As I already told you that. One example that you can take the glass over here, glass, and here this you put a cardboard and in between coin. Then you press it directly go inside the glass. That is not but your pressure, that force which is the inertia. Then activity 2, hang a half kg mass to a stand with a string 1, another string 2, mass keep hanging and mass does not string slowly because brakes marks develop. ये भी मैंने पढ़ा दिया था आपको क्या कि अगर एक स्ट्रिंग आप यहाँ पर लेंगे, दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पर लेंगे, एक में हैवी वेट लेंगे और लो वेट लेंगे, तो हैवी वेट किसकी तरह लोड हो जाएगी, हैवी वेट के ऊपर. इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, अगर इसके ऊपर लोड ज्यादा है तो पूरा डायरेक्शंस और जो पूरा जो उसका अलाइन फोर्स है कैसा हो जाएगा, टेंडेंसी ए की तरफ. किसकी तरफ हो जाएगा, ए की तरफ. अंडरस्टूड? दैट इज नथिंग बट योर इनर्शिया. ओके, नाउ वी विल टेक द प्रेशर. प्रेशर भी हमने कर लिया था. प्रेशर क्या है, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर गेटिंग प्रेशर इंडिकेटिंग डायल्स और डिजिटल मीटर्स, ये हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं. ओके, ये भी हमने पढ़ लिया था. अभी प्रेशर क्या है, अभी इनर्शिया के टाइप है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया के टाइप देखते. फर्स्ट टाइप क्या है, इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया एट द स्टेट ऑफ रेस्ट. कैसा है, इनर्शिया एट द स्टेट ऑफ रेस्ट. इनर्शिया अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में कैसा होगा, एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स इनर्शियन प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट. अभी इनर्शिया रेस्ट पर रहेगी तो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगी क्योंकि इनर्शियल प्रॉपर्टी इसके अंदर है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा तो अपने इनर्शिया को चेंज नहीं करेगा, वो क्या रहेगा, एज रिमेन एज सेम. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन. व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ द मोशन, क्या है, इनर्शिया ऑफ द मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ द मोशंस क्या है, the inertial property of an object due to which its state of motions cannot change. inertial property होने की वजह से अपने state of motions को change नहीं करेगी, वो जैसा है वैसे ही रहेगा. It's called its inertial property. For example, a revolving electric fan continues due to the even after it's switched off. Passengers sitting in the running bus get a jerk in the forward directions in the bus suddenly. So, जैसे आप देख सकते हो, जैसे फैन है, अगर ये है ना, ये क्या है, एक फैन है. अगर इसका स्विच ऑफ भी कर लेते हो आप, इसका स्विच अगर ऑफ भी करोगे तो भी वो वैसे ही घूमेगा अपने सेम डायरेक्शन, अपने मोशन में ही घूमेगा, बट क्या रहेगा, स्लो घूमेगा. अंडरस्टूड? बट वो वैसे ही मोशन में घूमेगा जैसे घूमता है क्योंकि अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा. जैसे आप एक और देखोगे, ट्रेन अगर यहाँ से जा रही है, यहाँ पर पैसेंजर्स बैठे हैं, है ना, तो अगर आप यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड में जाते तो सारी चीज आपको एकदम फॉरवर्ड में दिखती रहती, मतलब आगे पीछे जाती रहती है ना, पीछे पीछे आपके जाती रहती है, वो भी इनर्शियल की वजह से होता है. अंडरस्टूड? Then the directional inertia. Third one is a directional inertia. Let us see what it is.
डायरेक्शनल इनर्शिया क्या होता है? थर्ड वन, डायरेक्शनल इनर्शिया. Directional inertia. Let us see what is the meaning of directional inertia. The inertial property of an object due to which the object cannot change the direction of its motion is called the directional inertia. As we already learned that the due to inertial property cannot change the directional motions, as well as what you want to say, rest positions. So similarly, directional inertia cannot change its directions due to its inertial property. Then of its motion is called directional inertia. For example, a vehicle in the motions along a straight line suddenly turns, the passenger sitting in and throw opposite to the directions of turning. अगर आप यहाँ पर घूम रहे, अगर गाड़ी ने सडनली टर्न किया तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हो, है ना. इनर्शियल के अपोजिट डायरेक्शन में चले तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल इनर्शिया. अंडरस्टूड. Now next one is your pressure. We have completed. Then what is the meaning of pressure? We will take pressure and unit of pressure today. Pressure क्या है, उसका unit क्या है देखेंगे. Pressure of its unit क्या है? Pressure is nothing but force upon area. Pressure is nothing but force upon area. Area on which the force is applied. अभी area क्या है? एरिया वो है जिस एरिया पे फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं. ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, दैट इज योर एरिया. फोर्स वी हैव कंप्लीटेड फोर्स अपॉन एरिया. अब एरिया क्या है? एरिया वो है जहां पर फोर्स क्या हो रहा है? अप्लाइड हो रहा है. अंडरस्टूड. इन विच एरिया द फोर्स इज अप्लाइड, इट इज दैट वन. ओके. नाउ unit of pressure is what? The SI unit of pressure, the SI unit of force is Newton. अभी SI यूनिट ऑफ फोर्स का क्या है? SI यूनिट पता है सभी का SI यूनिट होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन. क्या है? न्यूटन. फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन. एरिया इज मेजर इन मीटर स्क्वायर. एरिया किस में मेजर होता है? मीटर स्क्वायर में. देयरफॉर द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर का SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अंडरस्टूड. ऐसा निकालते हैं SI यूनिट. पहले देखना फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है. एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है. देन प्रेशर भी ऐसे ही बनता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखेंगे. Therefore the SI unit per Newton by it is known as a Pascal. किसमें होता है प्रेशर? एक्चुअली किसमें यूज होता है? पास्कल में. अंडरस्टूड. किसमें होता है? पास्कल में. इन एटमोस्फेरिक साइंस यूनिट ऑफ प्रेशर इज अ बार. 1 बार इज नथिंग बट, एक बार कितना होता है? 10⁵ पास्कल. ये आपको याद रखना है. एक बार कितना होता है? 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल. अंडरस्टूड. 10⁵ पास्कल. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. और प्रेशर कैसा क्वांटिटी है? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. अंडरस्टूड. पास्कल इज योर, प्रेशर इज योर स्केलर क्वांटिटी. यू शुड हैव टू बी अंडरस्टूड इट. अगर मैंने आपको बताया जैसे कि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. इफ योर एरिया इंक्रीजेस, the pressure will be reduced. If your area increases, the pressure will be decreases. Understood? The pressure will be decreases. If the pressure increases, then area will be decreases. Understood? Because it is inversely proportional to each other. Understood? And the area decreases. For example, due to the natural adaptations, the bottom surface of the camel's feet are broad. Hence, the camel weight is exerted on a large area and the pressure on the sand is reduces. जैसे आपने देखा होगा कैमल्स के फीट होते हैं, जो उनके फीट जो होते हैं, उनका जो बॉटम होता है उसमें कम प्रेशर लगता है. इसकी वजह से उनका हैवी वेट्स होता है. तो इसके लिए सैंड पे कैसा प्रेशर लगता है? रेड्यूस्ड होता है. उसका प्रेशर कैसा होता है? रेड्यूस. के लिए दब जाता है, फिर ऊपर आ जाता है.
The camel feet does not penetrated into the sand and it become easy to walk. इनकी वजह से उनका जो वेट्स होता है वो डिवाइडेड हो जाता है पूरे फिट में उनके, इसलिए एक जगह प्रेशर नहीं लगता, इसलिए क्या होता है उनका वेट काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो सैंड की वजह सैंड में दबता नहीं उनका पैर और इजीली कैसा होता है, इजी टू वॉक हो जाता है। अंडरस्टूड? क्योंकि जो उसका प्रेशर बढ़ता है सैंड का प्रेशर रिड्यूस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो इजीली क्या करते हैं, अपने पैरों से चल पाते हैं। अंडरस्टूड? Then next one is the pressure on the solids. Let us see what is the pressure on your solids. As we know, if there is a pressure, it will be in a solid, liquid or gaseous state. But first we will talk about pressure on the solids. Pressure on the solids. Okay. Now let us see. Air pressure is exerted on all the object. As I told you, air pressure is exerted on all the objects kept in air. When the weight is kept on a solid, pressure is exerted on it. If pressure of the, we will talk, if we consider the pressure of air, it will divided in equal parts. If there is an object, it divided in equal parts. But if we talk about the pressure of the solid, it will exerted in a particular area where is the pressure applied. Just taken. When a weight is kept on a solid, pressure exerted on it. This pressure depends on the value of weight and the contact area between the two. Depend upon the area or how much area its pressure applied on two objects also. How many objects are there depend upon it also. The next one is you must have seen a vegetable vendor carrying a basket on her head. She keeps a twisted piece of clothes on the head below the basket. Why does it happen? We cannot stand at one places for a long time. How then can we sleep a place of 8 hour and odd hour? For striking an ice, why long flat ski used? अभी आपको एक दो तीन क्वेश्चंस पूछे हैं, you should have to answer it just like the first one. What it is? वेजिटेबल्स वाले देखो, भाजी वाले वेजिटेबल्स का जो होलसेलर्स होते हैं वो अपने सर पे देखो भाजी का जो बास्केट रखते हैं, है ना, बट अपने सर पे रखने से पहले वो अपने ऊपर एक कपड़ा रखते हैं। वो क्यों रखते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट वन इज योर स्टैंड ऑफ वन प्लेसेस फॉर। हम लोग कंटिन्यूसली एक प्लेस पे स्टैंड नहीं हो सकते, ऐसा क्यों? प्रेशर्स ऑफ लिक्विड, क्योंकि ज्यादा टाइम तक हम लोग एक ही जगह प्रेशर देके खड़े नहीं हो सकते। वी शुड हैव टू बी बैलेंस्ड अवर बॉडी। और बास्केट वाला था क्योंकि उसका जो बैलेंस्ड है वो बराबर टिका रहे, उसमें फ्रिक्शन ना आ जाए, इस वजह से क्या होता है, गिरे ना। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज अ प्रेशर ऑन दी लिक्विड्स। अभी सॉलिड का हो गया, अभी प्रेशर ऑन दी लिक्विड्स की बात करेंगे। प्रेशर ऑन दी लिक्विड्स, लेट अस सी व्हाट इज द प्रेशर ऑन द लिक्विड। प्रेशर ऑन दी लिक्विड्स, pressure on the liquids. Activity first, take a plastic bottle, take 10 centimeter long piece of glass tube on which a rubber balloon can be fitted. आपको एग्जाम्पल लेने बोला है, एक ग्लास का बॉटल लॉन्ग अ पीस ऑफ ग्लास ट्यूब लेना है, उस बॉटल के अंदर डालना है, फिर उसके ऊपर रबर अटैच करना है। Push the bottle at about 5 cm from the bottom to avoid water leakage. Apply molten wax on the side of the glass tube. Now fill water slowly in the bottle and see how the balloons inflated. What is the absorb the pressure of water acts on the side of the bottle as well as. अभी आप देखोगे बॉटल के ऊपर ट्यूब्स डालना है, उसको वैक्स से कवर करना है, फिर एक होल्ड करना है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बलून इन्फ्लेटेड होना चालू हो जाएगा। अंडरस्टूड? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर अलग होता है। अंडरस्टूड? तो उसको क्या करता है, वो इन्फ्लेटेड करना चालू कर देता है। टेक एक्टिविटी 2, टेक अ प्लास्टिक बॉटल पियर्स विद अ थिक नीडल। अभी आपको क्या बोला है, सेकेंड एक्टिविटी, बॉटल लेना है, उसमें काफी छेद करने, क्या करने हैं, छेद करने। देन फिर वाटर इन दी बॉटल अप टू फुल हाइट, कितना हाइट में करना है, एकदम फुल हाइट में। एज शोन द वाटर जेट्स विल सीन एमर्जिंग एंड प्रोजेक्टिंग आउट। द वाटर जेट एमर्जिंग फ्रॉम द होल एट द टॉप विल fall close to the bottle. The jet from the lower hole falls farthest from the bottle. Also jets
coming out of the two bottles at the same level fall on the same distance from the bottle. अब आप देखोगे होल करेंगे तो पहला होल, दूसरा होल और तीसरा होल. सबसे फास्ट पानी किससे आएगा? नीचे वाले से, उसके बाद इसके वाले, लेकिन इक्वल डिस्टेंस में ही आएंगे. कैसे आएंगे? इक्वल डिस्टेंस में आएंगे. ऑल्सो द प्रेशर इंक्रीजेस एंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस. प्रेशर भी इंक्रीज होगा और जो लिक्विड का डेप्थ है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो डेप्थ क्या हो रहा है उसका? इंक्रीज हो रहा है. और प्रेशर तो इंक्रीज हो ही रहा है जब नीचे नीचे जा रहा है वो. अंडरस्टूड? गैस प्रेशर. अभी हमने सॉलिड प्रेशर पढ़ लिया, लिक्विड प्रेशर पढ़ लिया, अब किसकी बारी है? गैस प्रेशर की. ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. फॉर टुडे, थैंक यू.